الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، 3 دن تک مسلسل جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں خاص طور پر قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں جو آپ کی خدمت میں واقعات اور دلیلیں پیش کی گئی، پوری تقریر کا مقصد ایک ہی تھا کہ اسلام وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے. مسلمان ایسی زندگی جیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. یہی مقصد اور یہی مذہب ہے. اپنی مرضی کی زندگی جینے والا نقصان اٹھاتا ہے. دنیا کی یہ تواریخ بتاتی ہے کہ جہاں عیش پرستی شروع ہوئی، بس وہیں سے قوم کے نقصان شروع ہوئے. جس قوم میں قربانی کی تمنائیں زیادہ ہو وہ قوم بہت آگے نکل جاتی ہے، اور جس قوم میں قربانی کا خیال نہیں ہے، صرف عیش پرستی ہے، ایسی قوم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. نہ تو خدا اس کو معاف کرتا ہے، نہ تواریخ اس کو معاف کرتی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر محمد شاہ رنگیلے نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے. ایران سے نادر شاہ نے جس وقت حملہ کیا ہے اور جس وقت محمد شاہ کو گرفتار کیے گئے، نادر شاہ نے اپنے طرف سے جو محل جیت لیا تھا اور محمد شاہ کو جہاں شکست ہوئی تھی اسی محل میں کھانے کی اس کو دعوت کی. دسترخوان بچھایا گیا، بہترین قسم کے کھانے دسترخوان پہ پیش ہوئے. کھانا شروع ہونے کے پہلے ہی محمد شاہ اور اس کے بہت بڑا قافلہ تھا، سبھی کو بٹھا دیا گیا. بالکل محمد شاہ کے بازو میں ہی نادر شاہ کے جس نے فتح کیا تھا وہ بھی بازو میں ہی بیٹھا. کھانا جب پیش کیا گیا تو محمد شاہ کے اور اس کے ساتھیوں کی جو رسالہ تھا ان کے سامنے بہترین قسم کے کھانے، قسم قسم کے بہترین ذائقے والے کھانے ان کے سامنے پیش کیے گئے. محمد شاہ نے دیکھا کہ نادر شاہ کے سامنے ابھی تک کھانا نہیں آیا. وہ کہنے لگا کہ یہ ابھی تک بادشاہ سلامت آپ آتے ہیں، پہلے تو آپ کے یہاں کھانا آنا چاہیے. کہا میرا بھی کھانا آ رہا ہے. جب اس کے تشتری پلیٹ جو تھی اس میں جب کھانا رکھا گیا، روٹی وغیرہ، تو سوکھی روٹی تھی اور اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا کچھ سالن کے جیسا جو سوکھا سا تھا وہ اس کے بازو میں رکھا ہوا تھا. محمد شاہ نے پوچھا کہ کیا یہ پرہیزی چل رہی ہے آپ کی؟ کہا کہ نہیں، پرہیزی تو نہیں ہے. تو پھر یہ کھانا آپ سوکھی روٹی آپ کھا رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ ہاں، جو تم کھانا کھا رہے ہو وہ غلام قوم کی نشانی ہے،
اور فاتح قوم کا کھانا یہی ہوتا ہے کہ جو میں اس وقت کھا رہا ہوں. سوکھی روٹی میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے, بہترین کھانے والا انسان کبھی نہ کبھی نقصان میں آتا ہے. آج ہمارے یہاں پر ہزاروں قسم کی بیماری, ایک جسم 6 فٹ کا 1700 بیماری کو لے کے چلتے ہم. کسی کو میٹھی پیشاب ڈائبٹیز کا درد ہے, کوئی ہارٹ کے مرض کو لیے چل رہا ہے, کوئی بلڈ پریشر کے اندر پریشان ہے, کسی کو کڈنی کی تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا لیور میں سوجن ہے, کسی کا پیٹ صاف نہیں آتا, کسی کو نیند نہیں آتی. صبح سے لے کے شام تک, رات کے 10-11 بجے تک جب تک سوتے نہیں اس وقت تک مسلسل گولیاں چلتی رہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ زندگی جیسے جینی چاہیے تھی ویسے ہم نے جی کر دکھایا نہیں. اپنی مرضی کے معاملات کو ہم نے ڈال دیا. حلق کو جو اچھا لگا, زبان کو جو اچھا لگا وہ کھانا ہم نے شروع کیا. نقصان دینے والی چیز سے ہم نے پرہیز نہیں کیا. جب جسم کا یہ حال ہے تو روح کا کیا حال ہوگا؟ جس طرح یہ غذا سے جسم کو نقصان پہنچا, ویسے ہی اگر غلط غذائیں اگر روح کو مل جائے تو روح بھی بیمار ہو جائے گی, مریض ہو جائے گی. اور روح کے بیمار ہونے پر سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ ایک بہترین قسم کا ایک بنگلہ بنایا ہے جس میں بہترین قسم کے گالیچے اور بہترین قسم کے صوفہ وغیرہ, سونے کے لیے نرم گدیلے, ایئر کنڈیشن, گیزر, سبھی سامان اس کے اندر مہیا کیا گیا. کسی دیہاتی چھوٹے گاؤں سے کوئی شخص آ جائے اور اس کو اس بنگلے میں رہنے کے لیے اجازت دی جائے کہ 1 مہینہ یا کچھ سال تک, کچھ مہینے تک آپ کو رہنا ہے. اگر وہ شخص جیسے گاؤں میں رہتا ہے, جیسے وہاں پر گاؤں کے یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کہیں کرسی وغیرہ بھی بیٹھتے ہیں تو دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا کے بیٹھتے ہیں. اب وہ حالت اگر یہاں بھی رہی تو نقصان ہوگا, فرنیچر کا داغ پڑے گا. اور جوتے پہن کر اگر داخل ہو جائے تو گاؤں کے جوتوں میں نالے لگی رہتی ہے, قالین کو بھی نقصان پہنچائے گا. گیزر چلانے نہیں آتا تب بھی پریشان, گیزر کے پھٹنے کا ڈر رہتا, اندیشہ رہتا ہے. پانی گرم کرنے کے لیے جو الیکٹرک ایک چیز رہتی ہے جس کو گیزر کہتے ہیں, اگر اس کا طریقہ نہیں آیا تو وہ بھی پھٹنے کا ڈر رہتا ہے, انسان کی جان جوخم میں رہتی ہے, خطرہ ہو جاتا ہے. تو اس آدمی کو گھر میں داخل ہونے سے سب سے پہلے اس کو سب تعلیم دی جاتی ہے کہ اس بنگلے کے اندر رہنے کا طریقہ یہ ہے, اس میں ایسے رہنا ہے, ایسے سونا ہے, نہانے کا طریقہ یہ ہے, اس کے معاملات یہ ہے, اور اس طریقے سے کھانا پکانا ہے تو کچن میں اس طریقے سے جانا ہے. گیس کو اگر چالو کرتا ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے وقت پر, اس کی ٹاکی کھلی نہ رہے, گیس کا بٹن کھلا نہ رہے. اگر یہ کھلا رہے گا تو کبھی بھی وہ سگریٹ بھی جلائے گا تو انگار لگ جائے گی. یہ ساری چیز اس کو سمجھانی پڑتی ہے, ورنہ اس کی جان کا خطرہ ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک محل بنایا, ایک بنگلہ بنایا, اور اس دیہاتی جیسے ہم لوگ ایسے انسان کو اس میں اللہ نے بھیج دیا. اب اس میں طریقہ بتایا کہ کیسے ہم کو رہنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, صحابہ کرام کے ذریعے سے, بزرگان دین کے ذریعے سے, ائماؤں کے ذریعے سے ہم کو ساری چیزیں سمجھا دی گئی. زندگی کیسے بسر کرنا, ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہوگا, دوزخ میں تمہیں جانا پڑے گا. یہ ترتیب ہم کو بتائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام وہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے اور ان کی مرضی کا ہو, اس کو کہتے اسلام. ہماری اور آپ کی مرضی کا اسلام نہیں ہو سکتا, ورنہ یہ جتنی محنت ہے سب پانی میں جائے گی. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت کو بیان فرمائی ہے. یقین مانیے چند ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کی کتابیں آج بھی علماء کرام اور دوسرے حضرات بھی اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے.
मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक वाकया इस किस्म के लोगों के लिए कि जो मजहब को समझते नहीं है और कोई भी अमल करते जाते तो इनके अमल कैसे जाया हो जाते हैं। एक मियां बीवी एक सेठ की यहां पे मुलाजिमत करते थे। बीवी जो थी वो घर के कामकाज में लगी रहती थी और शौहर जो थे वो सेठ की पेड़ी में उनकी ऑफिस में काम करते थे। दोनों जब बूढ़े हो गए, अब न वो बीवी से काम हो सकता है न शौहर से काम हो सकता है, तो सेठ ने दोनों को तनख्वाह दे दी और कहा कि अभी तुम घर बैठो, तुम्हारी खर्च की रकम जितनी तनख्वाह तुमको हम पहले देते वैसी तनख्वाह तुम्हारे घर बैठे मिल जाएगी। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तुम अल्लाह अल्लाह करो, बस तुमको जो कुछ तनख्वाह है घर पर पहुंचा देंगे। अब देखिए वो दोनों मियां बीवी बहुत ईमानदार थे। कुछ वक्त के बाद में उनके दोनों के दिमाग में एक बात पैदा हुई कि सेठ की रकम मुफ्त में आती है, इसको खा लेते हैं, अच्छा मालूम नहीं होता, कम से कम सेठ की खिदमत कुछ भी कर सके तो अच्छा है। सेठ के पास दोनों गए और जाकर कहा कि आप हमको महीने भर पूरी मेहनत खर्चा चले इतना रकम आप भेजते हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ खैर में भी याद करते हैं, मगर आपका करम यह हो जाए कि आप कुछ हमसे काम ले लें तो ये रकम लेने के लिए हमको झिझक पैदा ना हो। जब तक आपकी मुलाजिमत की, आपकी खिदमत की, तब तक तो रकम मिलती थी, मुनासिब था। अब घर बैठे लेने के लिए हमको शर्म महसूस होती है। सेठ साहब ने पूछा कि क्या करोगे तुम, आकर तुम्हारी आंखें तो बुढ़ापे की वजह से दोनों की आंखें भी चली गई थी, बहुत कम दिखता था, यानी यह है कि करीब का ग्लास भी उनको नजर नहीं आवे, नजर से पूरा आप दिखता नहीं, तुम क्या काम करोगे तुम? तो कहा हमारे घर के पिछले हिस्से में जो खुली जगह है, लकड़ी के सांचे हमको डाल दीजिए जिससे कपड़ा बनाया जाता है, हम उस सांचों के ऊपर बैठकर शाम तक जितनी मेहनत होगी, जितना कपड़ा तैयार होगा, हम बनाकर तैयार करके दे देंगे। आपकी पीढ़ी में तो हजारों किस्म के बिजनेस होते हैं, इसमें ये कपड़ा भी बिक जाएगा तो इसमें कुछ 2 पैसा मिलेगा, इससे हमारा खर्च भी होगा और हमको लगेगा कि हम मेहनत करके खा रहे हैं। सेठ साहब ने कहा कि आंख से दिखता नहीं, तो कहा हमको पहले से इसकी बुनने की आदत है और घर पे भी हम पहले करते थे, मगर आपके यहां अच्छा था, काम ज्यादा मिलता था, इसलिए हमने सबको बेच डाला था। अब वो आदत अब भी है हमको, आप अगर इसको फिट करवा दे तो अच्छा है। सेठ साहब ने मेहनत करके वो आकर वो मशीन इनके घर में डलवा दिया। अब वो लकड़े के 2 सांचे लगा दिए गए, सूत लाकर कीमती किस्म का लाके पेश भी किया गया, रेशमी सूत भी लाके दे दिया गया। अब वो दोनों मियां बीबी जो है वो मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। पहला ही दिन था, सुबह से मियां बीबी दोनों खाना पीना छोड़कर बस उस सांचे के पीछे लग गए। बहुत दिन के बाद, बहुत साल के बाद हाथ में पहले बार सांचा आया, इसलिए जरा आदत प्रैक्टिस थी नहीं, तो बहरहाल दोनों कहते कि आज खाना न मिले कोई बात नहीं, शाम तक एक कपड़ा तैयार कर ही खाएंगे। शाम को सेठ आने वाले थे, कपड़ा बुनकर पिछले साज में जाता था। शाम को जब सेठ साहब आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे कपड़े का, तो कहा देखिए वहां पर जो पड़ा हुआ है बन रहा है, बस अभी खत्म हुए धागे इसके। सेठ ने पलट कर देखा तो मशीन के सांचे के उस तरफ कुछ भी नहीं था, कुछ धागे टूटे फूटे पड़े हुए थे। सवाल क्या भाई यहां तो कुछ तो नहीं है, तो कहा क्या बात है। अब वो नाबीना किस्म के थे बेचारे, तो वो हाथ डाल के वहां देखने लगे तो हकीकत में हाथ फेर के देखा तो कपड़ा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सेठ ने आसपास नजर की तो वहां देखा कि 2 बैल बैठे हुए थे उसके, सब वो खा चुके थे, उनके मुंह में धागे लटकते थे। मालूम हुआ कि सुबह से शाम तक जितना कपड़ा तैयार किया, दोनों बैल ने, बकरियों ने, सबने मिलकर पूरा कपड़ा इनका साफ कर डाला है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाकये को लिखकर फरमाते हैं कि जिस तरीके से आंख न होने की वजह से सारी मेहनत इनके बेकार गई, अगर ईमान को भी अगर आंख नहीं तो सारे अमल तुम्हारे अकारत हो जाएंगे, सारे बेकार हो जाएंगे। और बात भी सही है ये। हज्जाज इब्न यूसुफ इस्लामी तवारीख में एक अजीब व गरीब नाम है ये। इससे मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा, इस्लाम पे नहीं कह सकता, मुसलमानों पर बहुत बड़ा एक एहसान किया उसने, और साथ साथ उसने नुकसान भी बहुत किया है। उसकी जिंदगी कैसे बनी मैं आपको बता दूं। ये सब तवारीखी सफ़े हैं,
कम से कम साल भर में 10-12 दिन जो बैठते हैं, इसमें से जो जो चीजें पेश करता हूं, कम से कम ये तवारीख की चीजों को अगर आप याद रख लें तो कहीं किसी के सामने ऐसा मामला न बनेगा कि जिसमें शर्म से सर को झुका देना पड़े। उस जमाने में जो खलीफा जो थे, सुल्तान थे, उन्होंने अपने जितना रसाला था, बड़े बड़े लोग थे जिसमें सिपह सालार वगैरह सब, यहां तक कि फौजी सिपाही तक भी ज्यादातर अपने रिश्तेदारों को ले लिया था। दीनदारी में यह काम नहीं चलता, मजहब के मामलात में यह काम नहीं चलता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप इस दुनिया से पर्दा कर गए तो खिलाफत के बाद से सब लोगों ने मिलकर इसमें बाकायदा उसका वोटिंग हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सिद्दीक अकबर वोटिंग से जो मुंतखब किए गए उसके बाद में वो आए। सिद्दीक अकबर भी इस दुनिया से पर्दा कर गए तो वो भी अपने तरफ से अपना कोई वली अहद बनाकर नहीं गए। सिर्फ अगर लर्जीज कह सकते हैं, अगर किसी ने गलती अगर की हो, गलती भी कहना हमारे लिए जुर्म, लर्जीज अगर किसी ने किए तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि वो अपनी हयाती में ही अपने बेटे यजीद को खिलाफत की गद्दी के वली अहद बनाकर गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाकयात यहीं से शुरू होते हैं। ये पूरी हिस्ट्री क्या चीज है, अमीर माविया कौन थे, वो इंशाअल्लाह आशुरे के दिन अल्लाह ने अगर हयाती दी और मौका बना तो उसी वक्त में ये पूरी हिस्ट्री शुरू इब्तिदा से मैं आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया था। जब हमला होता था तो वो हमले के लिए मामलात ये होते थे कि जब ये अपने सिपह सालार को हुक्म करे तो सिपह सालार इनके रिश्तेदार, और ये सिपह सालार खुद ही सोते रहते थे सुबह देर तक, और देर तक सोने की वजह से हालत इनकी ये हो जाती थी कि वो जंग के अंदर हमला पहले से हो जाता और जहां जाते थे शिकस्त हो जाते थे। इसलिए हुक्म दिया गया है कि रात के वक्त जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह सादिक के वक्त रोजी तकसीम की जाती है। बाद लोग रात को देरी तक होटलों में बैठते हैं, 1 बजा 2 बजा अपने दोस्ती बिरादरी में कहीं फिल्मों की दास्तानें सुनाई जाती है, कहीं कॉलेज के ड्रामा की बातचीत होती रहती है, कहीं कुछ और कहीं कुछ, दोस्ती बिरादरी के अंदर के भेद की बातें आपस में करते। क्या भेदे वो तो आप जानते ही, ये सब वो किस किस्म की बातें चलती रहती है 12, 1, 2 बजे तक। और फिर उसके बाद में बूढ़े माँ बाप घर में सोए हैं तो ये जवान बच्चे दरवाजा ठोक कर अंदर घुसते हैं, उनको बेचारों को उठकर दरवाजा खोलना पड़ता है। तो रात को जल्दी सोने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हुक्म है आपका कि इशा की नमाज के बाद दुनिया की किसी चीज में न लगना, सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। यहां तो मुसलमान की हालत है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक बिस्तर में पड़े हैं। और बाद लोगों की तो यह आदत होती है, बीड़ी की आदत, तो सुबह उठते ही मुंह धोया नहीं धोया वही बासी मुंह में बीड़ी डाल दी मुंह में, और जब तक कस के दम नहीं मार देते तब तक वो जा नहीं सकते वहां पाट लेकर। यह हालत हो जाती है इनकी। आदत का कभी गुलाम नहीं बनना, आदत को अपना गुलाम बनाना चाहिए। तो बादशाह जब हुक्म दे तो वहां के जो बड़े बड़े लोग सभी खैमे में पड़े रहते हैं। अब हमला सामने से हो जाता, शिकस्त हो जाती है। एक दिन सुल्तान ने हुक्म कर दिया कि भाई कोई हमारे लिए सिपह सालार को ऐसा तलाश करके लाओ कि जो इन लोगों को जरा सख्ती से काम ले सके। जब तक ये नहीं होगा काम नहीं बनेगा। कहा अच्छी बात है। सिपह सालार तलाश को निकले वो कि हमारी जगह पर कोई और, यानी उनके रिश्तेदार जो थे वो तलाश को निकले कि सिपह सालार की जगह पर बेहतर आदमी कौन मिले। अब उसी तलाशी में निकलते निकलते बहुत जगह पे तलाश किया मगर कोई मिलता नहीं। एक मदरसा छोटा था, उस मदरसे में हज्जाज इब्न यूसुफ, तवारीख में उसका चेहरा जो बताया गया है कि उसकी एक आंख भेंगी थी, तिरछा था बिल्कुल, कि उसको देखकर बच्चे हंसते थे, मगर दिमाग बड़ा होशियार था। कुदरत जब किसी चीज को कमी करता है तो दूसरी चीज को बढ़ा देता है, यह अल्लाह का कानून है। अभी हाफिज जी बहुत दिनों की 1 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा कलाम सुनाया और कुरान पाक भी बेहतरीन पढ़ा। जैसे मैंने अस्सलाम वालेकुम किया तो कहा जाफर भाई, आप फौरन पहचान लिया।
تو قدرت ایک چیز اگر لے لیتا ہے تو دوسری اس کے بدلے میں اس سے بہتر دیتا ہے. یہ خدا کی شان ہے. حجاج ابن یوسف مدرسہ چلاتا ہے. مدرسے کا طریقہ جو ہے وہ میں اپنے نظریے سے بتاتا ہوں, کیونکہ میرے پاس الحمدللہ کافی عالم حضرات بھی آتے ہیں, ویسے بھی دوسرے لوگ آتے ہیں, دیندار اور دنیادار سبھی لوگ آتے ہیں میرے پاس. کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی آتے بیچارے. تو لوگوں سے بات چیت میں یہ پتا چلا کہ عام طور پر جو مدرسے رہتے ہیں جس میں اتنی بڑی بیت نیتر کی سوٹی لے کر جو مولانا بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے مدرسے جتنے چل رہے ہیں, میں سبھی کے لیے نہیں کہہ رہا, بعض تو اچھے بھی ہوں گے, ان کے منتظمین کمیٹی کے جو آدمی جو رہتے ہیں بڑے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مولوی صاحب جو یہ مدرسہ پڑھا رہے ہیں اس میں 150 بچے ہیں, 80 بچے ہیں کہ 300 بچے ہیں. شام کو مغرب سے لے کے عشاء کے بعد تک بیٹھتے ہیں یا صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھتے ہیں, تو ان کی بیوی بچہ ان کے کتنے خرچ ہوگا گھر کا, کم از کم اتنا اس کو دو, اس سے کچھ زیادہ دو تاکہ دلچسپی کے ساتھ میں بچوں کو پڑھاوے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک مولانا صاحب ابھی بھی حیات ہیں, اللہ ان کی عمر دراز کرے, کچھ قرآن میں نے ان سے تھوڑا سا سکھا تھا. ابھی بڑی عزت کرتے. کچھ دن کے پہلے میں جب وہاں سے گزرا تو میں وہاں کھڑا ہو گیا, سلام کی میں نے, اور آؤ جعفر بھائی کر کے ہاتھ پاس پھیلایا. اب ہاتھ میں اتنی بڑی بیت, بچے لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے بھی ہیں ادھر بھی, ایک بہت لمبا کمرہ ہے وہ. اب وہ بچے بات چیت میں زور کی آواز کرنے لگے اور کچھ ہنسنے لگے آپس میں. تو مولوی صاحب بات میرے سے کر رہے ہیں, ہاتھ میں اتنی بڑی بیت ہے, بغیر دیکھے پھاٹ کر کے مارا تو 3-4 بچوں کے تھوبڑے پہ جا کے لگا اور وہ سب خاموش ہو گئے. میں نے کہا مولوی صاحب مذاق کر رہے, وہ بچے کو تو مار نہیں پڑی, آپ نے دوسروں کو تھوبڑے پہ مار دیا, ان کو بغیر دیکھے وہ بھی. تو کہتے 30 روپے تنخواہ ملتی, اس میں سے رحم کہاں سے لے کر آؤں میں, 30 روپے تنخواہ میں کہاں سے رحم لائے. اب سمجھ رہی ہیں آپ. تو پہلے وہاں جتنے منتظمین کمیٹی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس میں سے کچھ رقم ایسی نکالے جو ان کے خرچ کو پورا کر سکے. اگر عالم کی عزت کرو گے تو خدا تمہاری عزت کرے گا. اگر اس کمیٹی میں اتنی طاقت نہیں تو محلے والوں کو چاہیے کہ وہ عالم کی خدمت کرے. اور یہ سب سے بڑا کام ہے بھائی. اگر آپ کا بچہ بہت بڑی ڈگری بھی لے کر آیا مگر جسے قرآن شریف نہیں پڑھا, دین جسے نہیں سیکھا, تو وہ بچہ کی زندگی جینا اس کا بیکار ہو جائے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ علماء دین کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئے, ان کی خرچ کے معاملات کو بھی دیکھ لیں. حجاج ابن یوسف اس سے بھی زیادہ ظالم تھا. وہ تو بچوں کو باقاعدہ انگوٹھے پکڑواتے, اس قسم کے اس عرب کے زمانے میں کچھ ایسے معاملات تھے, اس کو الٹے کر کر جو بیت سے پٹکارنا, ایسا پھٹکارے کہ بس پوچھو نہیں. وہ صاحب جو تلاش میں نکلے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے شاید بڑے لوگوں کو یہی سیدھا کرے گا. اسے پوچھا حجاج ابن یوسف کو کہ تم مارتے ہو اتنا بے رحمی سے بچوں کو, تو کیا لگتا ہے؟ تو اسے ایک ہی بات بتائی کہ میں قانون کو جانتا ہوں کہ اس بچے سیکھتے نہیں تو مارنا میرا فرض ہے, اس لیے میں مارتا ہوں. اب اچھا لگانے بیٹھوں گا تو یہ پڑھیں گے نہیں. نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ تھی, وہ جنگ سے کافی اس کو فتح ملی. تو ایک ادنا سپاہی تھا, اس کی بڑی محنت تھی, اور ان کا بڑا کمانڈر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا, وہ جنگ میں ختم ہوا. تو جس ایک ادنا سپاہی کی وجہ سے یہ جنگ فتح ہوئی تھی, اس کو نیپولین نے کہہ دیا کہ کل سے تو کمانڈر بنے گا, اور کل صبح تجھ کو تلوار وغیرہ اس کے تاج اس کا پہنایا جائے گا. جنگ کے میدان میں ہی تھے اور آگے ان کو جنگ کے لیے جانا تھا. خیمے میں سب لوگ رہ جاتے تھے. رات کا وقت تھا, جب گھنٹی بجتی تھی, گھوڑے پر بیٹھ کر ایک آدمی گھنٹی بجاتے نکلتا تھا. اسی وقت اس کا نیپولین کا قانون تھا کہ جتنے بھی خیمے ہیں سب کی لائٹ بند ہو جانی چاہیے, یعنی مطلب کہ سب سو جائے, نیند آئے کہ نہ آئے بستر پہ پڑے. جلدی سلا دینے کا مقصد تھا کہ جلدی صبح اٹھ سکے. نیپولین کا یہ حکم تھا, اور اس کے واسطے جتنے بھی خیمے تھے اس کو کبھی کبھی خود تلاشی کو جاتا تھا. اب وہ شخص جو تھا جو اپنی ماں کو رات کو خط لکھ رہا تھا کہ کل صبح میں کمانڈر چیف بننے والا ہوں, خط لکھ رہا تھا, گھنٹی بجی مگر اسے چراغ بجھایا نہیں. جب چراغ نہیں بجھایا تو نیپولین قدرتی گھوڑے پہ بیٹھ کر وہاں سے گزرا کہ یہ بتی جل رہی ہے خیمے میں. لمبی تلوار تھی, اسے پردہ ہٹا کے دیکھا تو جس کو یہ صبح کمانڈر چیف بنانے والا ہے وہ خط لکھ رہا ہے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بتی ابھی تک جل رہی. تو کہا اپنی ماں کو میں خط لکھ رہا ہوں.
खुशी की खबर पहुंचा रहा हूं कि मैं कल कमांडर इन चीफ बनने वाला हूं। तो नेपोलियन ने कहा कि हां, ये खुशखबरी के साथ नीचे ये भी लिख लो कि बत्ती न बुझाने के जुर्म में तलवार तो पहले कमर पे बांधी जाएगी और उसके बाद में मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी, क्योंकि मेरा ये कानून यही है। नेपोलियन का ये कानून सख्त इसलिए था कि वो जानता था कि कानून अपनी जगह पे सख्त होना ही चाहिए। आज चंद ऐसे मुसलमान जाहिल किस्म के जो ये कहते हैं कि इस्लाम में हाथ काटने का गुनाह जो ये बहुत बड़ा, यानी एक किस्म की ऐसी चीज सजा है कि जो ना होनी चाहिए। मगर तवारीख बताती है, पिछले साल जो हज को गए थे हम, जहां कंकर मारे जाते हैं वहां पर हमने देखा कि रात के वक्त भी हम गए थे तो वहां हमने देखा कि नोट, एक आदमी का नोट का बंडल, कुछ लोगों की घड़ियां, कुछ पैसे वहां पड़े, मगर कोई अल्लाह के फजल से उसको हाथ तक नहीं लगाता। मुझे याद है कि मदीने मुनव्वरा जिस वक्त गए थे तो एक सैयद साहब थे, वो हमको पूरा वहां के पूरे मामलात, हमको एक एक चीज हमको उन्होंने दिखाई। सैयद साहब का एक छोटा बच्चा था 5 साल की उम्र का। जुम्मे की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ना बड़ा मुश्किल, बहुत रश था। बाहर रोड पर दुकानें लगी है, वहां पे हम लोग नमाज पढ़ते थे। सैयद साहब का बच्चा भी था, वो साइड में उसको खड़ा किया था। धूप थी और बिल्कुल दुकान लग कर है, सब जो लगी है वहीं पर दुकान है, और दुकान है जेवर की, सोने चांदी के जेवर बिक रहे हैं, असली सोने के, इमिटेशन नहीं। 2 रकात नमाज जैसी खत्म हुई तो वो सैयद साहब के पास वो बच्चा जो है, वो नमाज की टोपी के अंदर, वो अंदर मस्जिद के अंदर जाने की जगह नहीं थी, बाहर ही खड़े थे सब। तो दुकान के बाजू में, तो दुकान में सिर्फ पर्दा लगा था। बच्चा जब सजदे में गया, वो छोटा बच्चा, उसको क्या समझ, उसे पर्दा उठा कर देखा दुकान है तो अंदर घुस गया। वो हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। वो अंदर जाने के बाद में उसने सोने चांदी के जितने जेवर थे, कुछ गले में हार पहन लिया, टोपी निकाल के इसमें से सब भर दिया, अंगूठी वगैरह सब, और पूरा भर के बाहर आया। जैसे नमाज खत्म हुई तो अब्बा को दिखा रहा है कि देखिए अब्बा ये कितना अच्छा है। कहां से लाए? तो बोले इस दुकान में से लाया। जैसे नमाज खत्म हुई जाके वापस किया कि भाई बच्चा लेकर आया सब, तो गले में से सब निकाल के टोपी का जितना, अब वो अरब साहब को दिया तो शुक्रान शुक्रान करके रख दिया, टोपी वापस दे, बहुत शुक्रिया बोले जा। वो गिनते भी नहीं कि क्या है क्या नहीं। कानून सख्त होने की वजह से यह होता है कि आदमी को डर लगता है, क्योंकि जब अगर सजा से नहीं डरा तो इंसान गुनाह से कभी नहीं डरेगा। तो इसलिए सख्त कानून जरूरी है। चोर जब चोरी करेगा और गिरफ्तार हुआ तो पहले इसको पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की। हकीकत में अगर वो मजबूर है, उसकी मजबूरी को रहम की निगाहों से देखा जाएगा। जिसका माल चोरी हो गया, इसको पूछा जाएगा कि तुमने माल को संभाल के रखा था या ऐसा ओपन रख दिया था। इस्लाम का कानून अंधा नहीं, दुनिया कहती कि कानून अंधा हुआ करता है, मगर इस्लाम का कानून तो देखता कानून है। मक्के मोज़मा में 1976 का वाकया है। हमारे एक दोस्त थे मरहूम ख्वाजा साहब, इंतकाल कर गए। बहुत परहेजगार इंसान, बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मेरे दोस्तों में से थे। वो मुगल लाइन में काम करते थे हाजियों की खिदमत के लिए। पहले एक जमाना था, मेरे पास एक पारसी साहब आते हैं, अभी नहीं आते, कुछ वक्त शायद इंतकाल भी हो गया हो। वो पहले कस्टम ऑफिसर थे, जहाज पर, ये गोदी पर। वो बताते हैं कि पहले जिस जमाने में, आज से 30-40 साल के पहले, जब जहाज किनारे पे लगने का होता तो बोले हम खुद नारियल ले जाते, हार ले जाते। जैसे किनारे पे लगे तो हार चढ़ाते कि हाजियों का जहाज आ रहा है, और उसको नारियल तोड़ते थे हम। उसके बाद में दरवाजा और सीढ़ी लगती थी, और जो पहला हाजी आता उसका हाथ चूम लेते थे हम, इसलिए कि लोग हज करने के लिए जाते थे। कानून तो यह है कि जब खुदा के वास्ते गए तो खुलूस दिल से जाओ और खुलूस दिल से आ जाओ। यह तो था कि दिल खाली लेकर वहां गए और माल भर के लेकर आए तो अल्लाह की मोहब्बत रहेगी कहां पर। तो वो हज लाइन में काम करते थे, मुगल लाइन में। एक आदमी जो वहां पर काम करता था, कोई बड़ा ऑफिसर था, उसकी गाड़ी में सीरिया का एक शख्स था। उसको जोर का धक्का लगा गाड़ी का, और वो नीचे दबा और उस खत्म हो गया। बीवी उसके साथ में थी, बीवी के हाथ में छोटा बच्चा। शोहर का जब इंतकाल हुआ, समझ गई कि मेरा बच्चा तो यतीम हो गया और मैं बेवा हो गई। कानून के हिसाब से शोहर तो मर चुका है। अब काजी के वहां पर उनको पेश किया गया, गिरफ्तार तो किया गया। जुम्मे की नमाज के बाद में
बाब अब्दुल अजीज के सामने इनको खड़ा किया गया और वहां पे ये केस क्या सुनाई हुई। तो शख्स से पूछा गया कि क्या तुमने ये कत्ल किया है, ये जो इसको एक्सीडेंट से उड़ा दिया है, क्या तुम इस जुर्म को कबूल करते हो? उसे कहा कि हां मैं कबूल करता हूं। अब ये बताया गया कि जब जुर्म को तुम कबूल करते हो तो तुम्हारी भी सजाए मौत है, मगर उस बेवा को भी हम पूछ लेंगे, अगर वो बेवा अगर कोई रियायत करना चाहती है किसास के बदले में कुछ रकम देकर उसको राजी कर सकते हैं तो हम इसकी कोशिश करेंगे। उस औरत से पूछा गया उसी दिन कि तुम कुछ रकम लेकर 40,000 फला कुछ रकम बताया गया इसको कि इतने रुपए लेकर तुम क्या इसके जुर्म को तुम माफ कर सकती हो अपने शोहर के खून के बदले में किसास लेकर? अगर तुम चाहती हो तो इस रकम से तुम्हारी जिंदगी भी बन जाएगी, तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी बन जाएगी, इसको माफ कर दे। इस्लाम में एक कानून है, दुनिया की सारी अदालतों के अंदर एक चीज है कि एक आदमी ने दूसरे का खून किया तो जो खून करने वाला जो है उसको सजाए मौत हो जाएगी। शरीयत क्या बताती है? उलमाए किराम एक वाकया एक समझाते हमको कि एक मां उसके 2 लड़के हैं, दोनों बच्चे मां को कमा के खिला रहे हैं। अब वो दोनों बच्चों में से एक बार झगड़ा हो गया, एक भाई ने दूसरे का खून कर डाला, एक तो गया। अब एक बच्चा है जो मां की खिदमत कर सकता है और वो उसको खिला सकता है, मगर दुनिया की अदालत इसको दफा नंबर 302 में उसको जालिम साबित करके उसको फांसी पे लगा देगी, मौत की सजा होगी। या बाकायदा जिंदगी भर की कैद, अगर उम्र कैद हो जाए तब भी तो मां से तो बच्चा हट गया। अब मां क्या करेगी? उस वक्त खाने पीने का बंदोबस्त उसका कौन करेगा? तो शरीयत इस्लामिया उसको कहती, इजाजत देती कि अगर मां कहते कि मेरे इस बच्चे का खून इस बच्चे पर से मैं माफ करती हूं तो उसको इस्लाम की सजा उसको छोड़ दी जाएगी, इस्लाम की अदालत उसको छोड़ देगी। देखो कानून कितना बेहतर है, इसमें मजबूरी का फायदा नहीं लिया जाता, हक के साथ भी बात होती है। उस औरत से पूछा गया कि तुम इतनी रकम लेकर छोड़ दो तो तुम्हारा एहसान हो जाएगा। वो बिल्कुल जलाल की हालत में थी, एक दिन पहले ये इंतकाल हुआ था शोहर का, दूसरे दिन जुम्मा था और ये अदालत लगी थी। उस औरत ने ये कह दिया कि मैं 10 लाख रुपए भी अगर ये दे तो मैं मंजूर नहीं करती, मैं भी चाहती हूं कि इस तरीके से इसका बच्चा भी यतीम हो जाए और ये भी इस तरीके से मर जाए, इसकी बीवी भी बेवा हो जाए, क्योंकि उसके घर भी एक बच्चा था, उसकी बीवी, दोनों हम उम्र थे, एक ही उम्र के थे। 3 दिन की या 8 दिन की फिर मोहलत दी गई और उस मोहलत के बाद में फिर इस औरत को समझाया गया काजी साहब की तरफ से, मगर वो कहते कि मैं इसको माफ करना नहीं चाहती। जिस तरह मैं अपने शौहर के बगैर तड़पती हूं, मैं भी चाहती हूं कि ये भी इस तरह तड़पे, इसकी औरत भी। 3 बार इसको समझाने की कोशिश की, जब नहीं हुआ तो सजाए मौत का हुक्म उस पर लागू हुआ। तो जो हजरात देखते हैं अभी तो काफी गर्दी रहती है, फिर भी अदालत वहीं पर है बाजू में, बाकायदा लेकर तलवार लेकर जल्लाद खड़ा हो गया। मियां बीवी दोनों को मिलने का हुक्म दिया गया, मियां बीवी दोनों मिले, छोटा बच्चा हाथ में था, रो रही है वो औरत। आखिरकार ये हुआ कि उस बच्चे को देखकर मां अपने सीने पे इस बच्चे को लगा के रो रही है और एक कोने पे जाकर बैठ गई, क्योंकि उसको शायद चक्कर आने लगे, एक जगह पर आकर बैठ गए। काजी ने हुक्म कर दिया कि बस इसकी गर्दन उड़ाई जाए। कलमा पढ़ाया गया, पानी वगैरह दिया गया। उसके बाद में जब वो झुका और जैसी तलवार उठाई है उसने कि सीरिया की उस औरत ने जोर से आवाज दी, ठहरो करके अरबिक में कह दिया उससे, फौरन तलवार हट गई। काजी ने पूछा क्या? तो कहा मैंने खुदा के वास्ते इस आदमी को मैंने माफ कर दिया। बस ये सुनना था कि जितने आसपास लोग खड़े थे सभी अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो औरत इतनी खुश हो गई उसकी, वो दौड़कर उस सीरिया की औरत को मिलकर, गले से मिलकर खूब रोने लगी। वो कहती है कि तुमने मेरा सुहाग बचा दिया, अल्लाह तुम पर रहम करे। काजी ने कहा भी इसकी किसास की रकम इसको पहुंचा दो। तो वो कहते हैं खुदा की कसम काजी साहब, मैंने पैसे की लालच में इसको माफ नहीं किया, मैंने इस बच्चे पर रहम खाया कि मेरा बच्चा जिस तरह यतीम हुआ ये बच्चा भी यतीम हो जाए तो मुझको क्या फायदा मिलेगा। मैंने इसलिए इसको माफ किया कि खुदा मुझ पर रहम फरमाए, इसलिए मैंने इसको माफ किया है। और जितना कानून सख्त होता है इतना काम भी अच्छा होता है, रियाया पर इसके असरात भी ज्यादा अच्छे होते हैं। बहरहाल हज्जाज इब्ने यूसुफ को यह काम सुपुर्द किया गया।
ला कर इसको बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि कोई बात नहीं, इनको सबको सीधे मैं कर डालूंगा। बादशाह ने एक सोने का हंटर इसके हाथ पे दिया, कहा सोने का हंटर लो और हमारे जितने हैं साथी इनको सबको सुधार दो। कहा इसकी फिक्र मत करो। जहां इनके कैंप थे, मिलिट्री बैरक जो थे, यहां पे हज्जाज इब्न यूसुफ सुबह जल्दी जाता था। परेड के लिए इनको जो बुलाया जाता था उनको कहा जाता कवायद के लिए कि चलो। जब ऐलान हो जाता पहले और घंटी बजा बजा के सबको उठाने का हुक्म कर दिया हज्जाज इब्न यूसुफ ने, फिर भी वो बादशाह के सुल्तान के रिश्तेदार सब खैमे में पड़े रहते थे, बैरक में पड़े रहते थे। हवा जलने वाले उनको हवा जलते रहते थे। हज्जाज इब्न यूसुफ ने जाकर एक बड़ा जो रिश्तेदार उनका करीब का था उसको कमर पे जाकर जोर का हंटर मार दिया और कहा कमबख्त अभी तक सोया, हुक्म नहीं सुनता कमांडर इन चीफ का। वो उठ तो गया गुस्से के मारे। कवायद हो जाने के बाद बादशाह के दरबार में जाके कहने लगा कि कैसे आदमी को लेकर आए, तुम्हारे रिश्तेदारी को भी ख्याल नहीं करता, इससे हम पर हंटर चलाना शुरू कर दिया। हज्जाज इब्न यूसुफ को बुलाया गया, बुलाकर इसे कहा कि क्या तुमने ये हरकत की थी? कहा कि हां। कहा क्यों तुम हमारे रिश्तेदारों को तुमने हंटर मारा? तुम्हें मालूम नहीं, छोटे बड़े का ख्याल नहीं? उसी वक्त उसे कमर पर जो सोने का हंटर था उतार कर बादशाह के कदमों में रख दिया कि आपकी मुलाजिमत मुझसे नहीं हो सकती, या तो इनको सब रिश्तेदार जो तुम्हारे चमचे इनको संभालो, या तो फिर मेरे पास दो तो इनको मैं सबको सीधे कर दूं। बादशाह ने कहा क्या मतलब? कहा तुमने हंटर इसीलिए तो दिया कि इनको सबको सीधे कर दूं। बादशाह ने कहा कि अच्छी बात है, अब जो तुम करो हमको मंजूर है। बस उसके बाद शुरू हो गया। अब हज्जाज इब्न यूसुफ ने फतह भी किया, काम भी बहुत किया। जब इसको गवर्नर बनाया गया उसके दिमाग में एक बात पैदा हुई। देखो बात कहां से चल रही है कि कभी ये भी होता है कि इंसान बुराई के काम को अच्छे समझता है, अच्छे काम को बुरे समझता है और उसके ख्यालात जो है वो कहां से कहां भटक जाते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ के दिमाग में एक बात पैदा हुई और उससे ये आलिमों को बिठाकर एक मशवरा किया कि ये जो कोफी जबान में कुरान शरीफ है, जबान तो अरबी है मगर लिपि इसकी कोफी है, इसमें जेर जबर नहीं है। उस जमाने में जेर जबर क्या ये भी किसी को नहीं मालूम था। ये कुरान शरीफ जो है इसको हमारे बाद के लोग जो हैं अगर इसको पढ़ेंगे दूसरे मुल्क में तो इसको पढ़ने की तरतीब गलत हो जाएगी। पूरे कुरान शरीफ में 17 ऐसी जगह हैं कि जहां पे आदमी जरा सी गलती खा ले तो कुफ्र का फतवा लग जावे, उस पर गुनाह लाजिम हो जाए, इस पर जरा सा फर्क हो जाए तो जेर जबर की गलती से मामला खत्म हो जाता है। जैसे किसी मनचले शायर ने यह भी कहा है, अशार तो मुझे याद नहीं, तर्जुमा बता दूं इसको, कि लफ्ज खुदा लिखा हुआ हो, ऊपर के नुक्ते को उठा के नीचे रख दो, यानी नुक्ते की हेरा फेरी में खुदा से जुदा हो जाए। खुदा लिखा हुआ है, नुक्ते को नीचे लगा दो उठाकर तो जिम बन जाएगा खै के बदली में, तो खुदा से जुदा हो जाए। तो नुक्ते की एक हेरा फेरी में खुदा से इंसान जुदा हो जाए। कुरान शरीफ के अंदर भी 17 ऐसी जगह हैं कि जहां पर पढ़ने वाला अगर जरा सी गलती कर ले तो गुनाह उसके सर पर आ जाएगा। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने यह कहा कि हमारे बाद के लोगों को सही तरीके से कुरान पढ़ने की तरतीब मिल जाए। उलमाए दिन बैठे और उसकी निशानियां सब बना ली, जेर की, जबर की, शद की, मद की, ये जितने भी हैं ये सब उसके बाद में जुड़े हैं इसमें। ये मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम पर नहीं, मुसलमानों पर हज्जाज इब्न यूसुफ का एक बहुत बड़ा एहसान था। और आप ये जानते हैं आज अगर हमारे और आपके पास अगर जेर जबर बगैर का कुरान शरीफ अगर आ जाए तो पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अभी भी उस किस्म के कुरान मिलते हैं कूफी लिपि में, मगर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। उलमाए दीन जो है या हाफिज है वो इसको पढ़ सकते हैं। और कुरान पाक एक ऐसी किताब है, ये जबान एक ऐसी जबान है कि सिर्फ उंगली के इशारे से आदमी सीख सकता है इसको। दुनिया की कोई भी जबान अगर आदमी बच्चा सीखने को बच्चे को भेज दे किसी क्लास में, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, चाइनीज, किसी भी जबान में अगर वो जबान सीखना है तो उसको पेन और स्लेट लेनी पड़ेगी या कागज और पेंसिल लेना पड़ेगा, तब तक वो ABCD लिख नहीं पाएगा। अरबिक जबान का और इसके कुरान की तालीम का यह है कि कभी बच्चे को पेंसिल लेके जाने की मदरसे में जरूरत नहीं पड़ती, वो कायदे से उंगली के बल वो पूरा कुरान सीख लेता है। यह इसका मोजीजा कुरान का।
हज्जाज इब्न यूसुफ ने यह एहसान कर दिया, मगर साथ साथ इसको इस अमल के वजह से इसको एक किस्म का घमंड पैदा हुआ, क्योंकि लोगों ने बड़ी तारीफ की इसकी। और जब घमंड पैदा हो जाता आदमी को, तो खुदा को यह पसंद नहीं आता। खुदा को किसी की घमंड पसंद नहीं। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, घमंड और बुजुर्गी की चादर मेरी है, जिसने इसको खींचने की कोशिश की इसको हम जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह की तासीर है, हमको और आपको तो हक भी नहीं इसका। वही बुजुर्गी के काबिल है। कुरान पाक में एक आयत है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह तू जिसको चाहे इज्जत दे, तू जिसको चाहे जलील कर दे। बुजुर्गान दीन के सुफिया किराम में इसमें एक कहानी, इस पर एक कहानी, एक वाकया बयान किया जाता है। तफसीरों में नहीं है, तफसीर में मैंने देखा, मैंने नहीं, मेरी नजर नहीं पड़ी, मगर बुजुर्गान दीन के यहां पर यह वाकया बयान किया जाता है। बहुत काबिल इबरत है, इसको बीच में इसको भी पेश कर दूं। घमंड क्या चीज है? बादशाह के दरबार में शहजादे को यह आलिम पढ़ा रहे थे कुरान पाक तर्जुमे के साथ। जब ये कुरान पढ़ रहा था बच्चा वो, तो कुदरती आयत आई कि अल्लाह तू जिसको चाहे इज्जत दे, तू जिसको चाहे जलील कर दे। बादशाह वहां पे बैठा हुआ है, उससे ये कहा, मौलवी साहब जरा ठहर जाइए, एक चीज मुझे समझाइए। मेरी इतनी बड़ी सल्तनत है, मेरी रियाया बिल्कुल खुशहाल है, मेरी इतनी बड़ी इज्जत है, मेरी ताकत भी इतनी ज्यादा है। बेशक दी तो अल्लाह ने इज्जत, मगर अब जलील मुझको कैसे कर सकता है वो, जबकि मेरे पास इतनी इज्जत है, इतनी ताकत है, इतनी दौलत है, हुकूमत की ताकत, इज्जत की ताकत, माल की ताकत, सब कुछ है मेरे पास। मैं कैसे जलील हो सकता हूं? यह आयत मेरे समझ में नहीं आती। मौलवी साहब सीधे आदमी थे, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप अपने दिल में रखिए, इसका इजहार मत कीजिए, जबान से कुफ्र के अल्फाज मत कहिए आप, तो मेरी समझ में नहीं आता है। आयत अपनी जगह पर सही है, तो कहा मेरे नहीं, मैं इसको नहीं कबूल करता। अच्छी बात है, मौलवी साहब तो कुरान पढ़ाते थे। एक वक्त गुजरा, 2 साल का एक अरसा गुजर गया, तब तक बच्चे ने कुरान पूरा कर लिया। अब यह हुआ कि वो कुरान शरीफ पूरा हो गया, उसके बाद मौलवी साहब ने फिर एक बार नाजरा पढ़ा दिया उसको, उसके बाद चले गए। अचानक दूसरे बादशाह की तरफ से हमला हुआ, और जब हमला हुआ तो ऐसा अचानक हमला हुआ था कि बादशाह पूरी तैयारी भी नहीं कर पाया, और आखिर ये हुई कि इसकी शिकस्त हुई। रात के वक्त ही अपना लिबास बदल कर घोड़ा लेकर वहां से भागा है। बच्चे इसके कत्ल हो गए, बीवी इसकी कत्ल हो गई, बेगम वगैरह, रिश्तेदार जो कुंबे वाले थे जो महल में साथ में रहते थे वो भी सब कत्ल हो गए। बादशाह अपनी जान बचाए, कुछ वफादार आदमी थे, उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से निकल जाओ, वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। वहां से निकलकर बहुत दूर दूसरे मुल्क में जब उसकी सरहद में दाखिल हो गए, तो कोई पहचानता नहीं था कि यह फला मुल्क का बादशाह है, क्योंकि 3 दिन की सफर थी, जंगलों में से, बेआबान जंगलों से गुजरा है। खाना मिला न मिला, पत्ते दरख्त जो कुछ मिला उसमें खा लिया उसने। चेहरे पे गर्द गुबार लगे हुए हैं, लिबास पर पसीना है, और लिबास भी खत्म हो चुका है, ऐसी हालत है, इतना गंदा। 3 दिन में तो उसकी हालत खराब हो गई। एक गांव था छोटा, उस गांव में पहुंचा, मस्जिद थी, नमाज अदा की, उससे वजू करके वहां पे नमाज अदा की। एक आदमी खाली गांव में उस मस्जिद के अंदर नजर आया। पूछा इससे कि भाई एक ही आदमी यहां पर है, गांव में तो काफी मुसलमान नजर आते, ये लोग को नमाज नहीं पढ़ते क्या? तो कहा साहब यहां किसी को नमाज आती नहीं और मैं सिखाता हूं तो मेरी बात को कोई मानता नहीं, तो तुम आलिम कहां हो? हमको गलत सलत सिखा दोगे तुम गुनाहगार हो जाएंगे। अब ये बेचारे निकलकर गांव के लोगों को बुलाकर, रात के वक्त गांव में जितने काम करके आए थे सबको बुलाया, मस्जिद में बिठाकर इनको दीन समझाने की कोशिश की बादशाह ने। लोग समझ गए कि ये गरीब आदमी कोई है, कोई मौलवी तबके का आदमी है, तो चलो जो कुछ हुआ अच्छा होगा। लोगों ने कहा कि खाना पीना हम दे देंगे। इनसे पूछा कहां जाना का? मैं तो और आगे जाने का इरादा करता हूं, ऐसे निकला हूं, कहीं अगर पेट के लिए 2 रोटी मिल जाएगी तो कहीं भी ठहर जाऊंगा। तो कहा हमारे गांव में ठहर जाओ, वहीं ठहर गए।
धीरे धीरे ये हुआ कि हर आदमी के घर पे जा जाकर ये समझाते थे कि भाई नमाज पढ़नी चाहिए, भाई नमाज पढ़नी चाहिए। मस्जिद में लोग आने लगे। कुछ दिन के बाद में ये हुआ कि गांव के लोगों की नजर के अंदर इनकी बड़ी इज्जत हो गई। अब खाने पीने की कोई सवाल पैदा नहीं होता था। घर के गांव के लोग सुबह नाश्ते का एक आदमी ले आया, दोपहर का खाना दूसरा ले आता था, रात का खाने का तीसरा ले आता था। इस तरीके से चलता था। कपड़े का भी मामलात खत्म हो गए। अब वो घोड़ा बेचकर जो रकम थी उसको संभाल के रख ली। 2 साल वैसे ही गुजरे हैं। बादशाह को वहां के पता चला, छोटी सी रियासत थी मगर वो बादशाह की भी बड़ी ताकत थी। बड़े बड़े बादशाहों से इसके ताल्लुक थे। उस बादशाह को पता चला कि एक आलिम हमारे गांव में आया हुआ है, फलां गांव में, और वहां के लोगों को बड़ा फैज पहुंचा इससे। तो कहा बुजुर्ग हस्ती होगी, जाके मिले। बादशाह खुद आया, उसे कहा कि बहुत तारीफ सुनी आपकी, तो बेहतर तो यह है कि आप मेरे बच्चों को भी तालीम दे कुरान की। कहा अच्छी बात है। अब बच्चों को तालीम देने के लिए महल दरिया के किनारे पर था, यहां आकर वो सिखाते थे। अब तालीम दे रहे हैं, बादशाह भी बैठा है, देख रहा है कि क्या पढ़ाते, मैं भी तो देखूं। कुरान शरीफ चल रहा है, पढ़ते पढ़ते फिर वो आयत आए, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। तू अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। जब ये आयत आई तो वो बादशाह जो गरीब हो चुका था, आलिम बन चुका था, ये रोने लगा। रोता है तो ऐसे रो रहा है कि उसकी आंख से आंसू सूखते नहीं। बादशाह ने पूछा भाई क्यों इतना रो रहे हो, क्या बात है? कहा नहीं साहब कुछ भी नहीं, यही आयत है कि जिस पर मैंने बड़ा शक व शुबा किया था, यही आयत है कि जिससे मैंने अपनी जिंदगी की हालत को पूरी भुला दिया। और अब यकीन हो चुका कि बेशक ये यकीनी आयत जो है, इसके अंदर तासीर कुरान की कोई आयत अपनी जगह पर कोई गलत नहीं है। समझने वाला गलत हो सकता है, पहचानने वाला गलत हो सकता है, पढ़ने वाला गलत हो सकता है, मगर कुरान की आयत अपनी जगह पर बरकत है। अब ये दिल में यकीन था। बादशाह ने इसको पूछा कि भाई क्या बात है, आखिर तुम राज तो कहो हमें, अगर हो सकेगा तो हम भी खिदमत करेंगे तुम्हारी, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारी मदद करेंगे हम। तो उससे कहा कि देखिए मेरे हाथ की अंगूठी पहचानते हैं? तो कहा यह तो शाही निशानी के तौर पर कोई अंगूठी लगती है। तो कहा क्या? मैं आपके पड़ोस का फला मुल्क जो है उसका मैं बादशाह। मेरे बच्चे को आलिम जब आके कुरान पढ़ाते तो एक बार में इतनी सल्तनत का ताकतवर बादशाह, जब वो आलिम जब कुरान की सायत पर जब आया कि अल्लाह तू जिसको चाहे इज्जत दे, तू जिसको चाहे जलील कर दे, तो मुझको शक आ गया, मुझे यकीन नहीं था। मैंने उस आलिम के पास बैठकर मैंने बहस की। आलिम तो सीधा साधा आदमी था, वो पढ़ा के तो चला गया। मगर 2 साल के बाद मुझ पर यह चीज हुई कि मुझको शिकस्त हुई, बाल बच्चे सब खत्म हो गए, मेरी रियाया क्या हालत हुई मुझे मालूम नहीं। हालांकि यह हुआ कि मेरी सल्तनत खत्म हुई और मैं वहां से एक घोड़ा, जिस्म पर जो कपड़े थे वही, और ये एक शाही अंगूठी की निशानी, इसी को लेकर मैं आया। अब जब आपके बच्चे को आयत पढ़ा रहा हूं तो मुझको अपनी वो हालत याद आती है कि इसी आयत पर मैंने इतराज किया था तो कुदरत ने मुझको सबक सिखा दिया। बादशाह ने कहा कि तो आपने बहुत अच्छी इबरत अंगेज बात कही, अच्छी बात है, हम आपके लिए फिर कोशिश करेंगे। दूसरे सुल्तानों से मिलकर हमला करवाया उस पर। फिर उस मुल्क पर हमला करते ही वो बादशाह जो जालिम किस्म का जो आया था उसकी शिकस्त हुई और इस बादशाह को फिर से वहां पर बिठाने के लिए हुक्म किया गया। 10 या 9 बड़े बड़े सुल्तान थे उस वक्त जबकि इसको गद्दी पर फिर बिठाया जाता था। तो इससे पहले हुक्म कर दिया कि नहीं, जब मैं गद्दी पर उस वक्त बैठूं कि जो तख्त है उसके ऊपर एक तख्ती लगा दो, इसमें यही आयत को लिख दो कि अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर डाले। ये तख्ती लगेगी बाद में जाकर, उस पर मैं उस तख्त पर बैठूंगा, क्योंकि ये इसी के वजह से मुझको मालूम हुआ कि इंसान का घमंड अपनी जगह पर नहीं चल सकता। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने भी घमंड किया, कई लोगों को उससे शहीद करवा दिया, यहां तक कि काबतुल्लाह पर भी जो हमला हुआ है, आज जो हतीम की जगह है वो वहां तक पूरा काबा था, मगर हज्जाज इब्ने यूसुफ ने गोलेबारी की थी और वो गोलेबारी की वजह से इतना दीवार का टुकड़ा टूट चुका और फिर उसी से उसको जो बनाया गया, बाकी की जगह जो थी वो हतीम के तौर पर बनाई गई। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने हजारों की तादाद में
ऐसे दीनदार लोग के जो हकीकी मानों में बुजुर्ग थे उनको भी उसने शहीद करवा दिया। एक दिन की बात है, खुतबा देता था वो, खुतबा दे रहा है जुम्मे की नमाज का। खुतबा शुरू हुआ और तकरीर उसने इतनी लंबी कर दी, इतनी लंबी तकरीर कर दी कि वहां पर जो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, साहबा किराम में से हजरत उमर के साहबजादे हैं, मगर वो जमाना सब गुजर चुका है। उसके बाद के जमाने की बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 70 साल के बाद की बात है। अब्दुल्ला इब्ने उमर की उम्र जो है उस वक्त करीब 90 साल से भी ज्यादा है। उस मजमे में वो बैठे थे, उठकर खड़े हुए और फरमाने लगे कि हज्जाज अपने खुतबे को कम कर दे, छोटा कर दे। जुम्मे की नमाज का सुन्नत का वक्त जो है वो गुजरा चला जा रहा है, सूरज ढल रहा है, बेहतर है कि खुतबे को तो कम कर दे और जल्दी से नमाज पढ़ा दे। आज हम लोग आपस में कि इसके पीछे नमाज, उसके पीछे नमाज। अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे तो साहबी, इतनी बड़ी बुजुर्ग हस्ती हज्जाज इब्ने यूसुफ के पीछे नमाज पढ़े, ये तवारीख बताती है। जिस वक्त उससे सुना तो खुतबा उससे कम कर दिया। खुतबा खत्म हुआ, उसके बाद मेहराब के पास आके खड़ा हुआ, नमाज शुरू हुई। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही खड़े रहते थे, पहली सफ में। जैसे नमाज खत्म हुई, सलाम फेरने के साथ हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इशारा कर दिया अपने आदमियों को कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार किया जाए। बूढ़े साहबी बेचारे 5-6 पुलिस से पकड़कर उनको ले गए और कैदखाने में बंद कर दिया। जब कैदखाने में बंद किया है तो रिश्तेदार पहुंचे और हज्जाज इब्ने यूसुफ से ये कहा कि एक सहाबाए किराम में से एक शख्सियत तो इस वक्त हमारे सामने है कि जिनके चेहरे को देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम याद कर लेते हैं। आज ऐसी बुजुर्ग हस्ती को जो इतनी बड़ी उम्र के है उनको तुमने जेल में डाल दिया। तुम्हें गैरत नहीं आती साहबी के चेहरे को देखकर? हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि मेरी तौहीन की है, हजारों आदमी का मजमा लगा हुआ था उस मस्जिद के अंदर, उससे मेरी तौहीन की, इसलिए मैंने इनको गिरफ्तार किया है। जाओ इनसे माफी का खत लिखवा के लाओ तो मैं माफ कर दूं, छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। रिश्तेदार सब पहुंचे उनके पास, जेल में जाकर कहा आप इस माफी खत लिखकर लाए हैं, इस पर आप दस्तखत कर दीजिए। काहे का माफी खत है? तो कहा आपने जुम्मे के खुतबे में हज्जाज इब्ने यूसुफ को आपने बैठ जाने को कहा और खुतबा छोटा करने के लिए कहा, तो आप इसके लिए माफी मांग लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इतने बुढ़ापे में भी अल्लाह ने इनको कैसी तक़वियत देती ईमान की, फरमाने लगे कि क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस को नहीं सुना कि हक बात जालिम से जालिम बादशाह के सामने भी अगर कोई कह दे और अगर उसमें उसके वो मामला तो अगर उसकी जान का खतरा आ गया तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पर अमल करने का जिंदगी में पहले ही मौका मिला है और इसके सवाब से तुम मुझे दस्तखत लेकर महरूम करना चाहते हो? हरगिज खुदा की कसम में माफ नहीं, इसके अंदर माफी का खत नहीं लिख सकता मैं। जाओ उसे कह दो मुझे शहीद कर दे, मुझे मंजूर है, कत्ल कर दे। साहबे किराम ने जाके फिर हज्जाज इब्ने यूसुफ को समझाया। जब बड़े बड़े लोग आए तो हज्जाज इब्ने यूसुफ को भी शर्म आई तो उसे रिहा करने का हुक्म कर दिया। इधर सब रिहा नामा लेकर जेल की तरफ रवाना हुए, उधर से उसे एक गुलाम को तैयार किया, जैसे जेल से बाहर निकले कि उनको शहीद कर डालना। इतना ये जालिम आदमी था कि चेहरे पर एक बात थी, दिल के अंदर कुछ और था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया का ये फिरौन था, ये हज्जाज इब्ने यूसुफ के लिए कहा गया, जिससे कुरान पाक के जेर और जबर लगवाए। इतना बेहतरीन काम किया कि कयामत के दिन तक कुरान के पढ़ने वाले उस एहसान को भूल नहीं सकते। मगर खुदाए पाक का कानून एक है कि उसकी मर्जी के मुताबिक मजहब बनाए, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। उससे जो नेकी कही वो नेकी है, उससे जो बदी कही वो बदी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अच्छा फरमाया वो अच्छा है, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा फरमाया वो बुरा है। आखिरकार उसकी हालत ये हुई साहब, एक बीमारी उसको लगी है और वो बीमारी ऐसी लगी कि उसको पेट में एक मर्ज लगा। पेट का इसका मर्ज इतना खतरनाक था, शुरू में तो कुछ हकीम लोग आए,
और जब देखा इनके पेट के मर्ज को, इलाज शुरू हुआ। किसी ने कहा कि पेट के अंदर खराबी हो गई, किसी ने कहा मैदा खराब है, किसी ने कहा कि खाने में कोई चीज आ गई है। जो भी हो, सबने अपना इलाज शुरू किया। एक हकीम, दूसरा हकीम, शाही बड़े बड़े हकीम आए, मगर कुछ फायदा ना हुआ। खुदा जिसको चाहे शिफा मिले, दवाओं का भी ये हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कई बीमारियां बनाई है, इतने मर्ज पैदा किए हैं, सबकी इलाज है। जब इंसान जब दवाई लेता है तो अल्लाह के हुक्म से उसको शिफा मिलती है। जब हलक से जब गोलियां उतरती है तो हलक पर आकर अल्लाह से पूछती है कि अल्लाह इसके लिए शिफा बन जाए या इसकी मौत के वजह बन जाए। अल्लाह का फजल हो, जिसको चाहे शिफा। एक इंजेक्शन है कि एक आदमी को दो तो मर जाता है और वही इंजेक्शन से दूसरा आदमी बच जाता है। एक ही डॉक्टर है कि जिससे एक ही मर्ज का आदमी उसी उम्र का बच जाता है और वही डॉक्टर के हाथ से उसी उम्र का आदमी वैसे मर्ज वाले को मार डालता है। ठिकाना ही नहीं, खुदा के हुक्म से सब कुछ होता है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने देखा कि इन हकीमों से कुछ नहीं बनता, तो दूसरे हकीमों को बुलाया। अब हालत इसकी यह हुई कि लोगों ने कहा कि जब इसके पेट में जब दर्द उठता था तो ऐसा दर्द उठता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो जैसे आजकल कैंसर की किसको बीमारी हो जाती है तो लाइट देते हैं, वो गर्मी की वजह से हल्की गर्मी रहती है। हज्जाज इब्न यूसुफ के पेट में भी जो दर्द रहता था तो वहां के हकीमों ने बताया कि सीगड़ी के पास इसको बिठाया करो और कोई गर्म चीज लेकर पेट पर इसको गर्मी से इसको सेक दिया करो ताकि उसके पेट के कीड़े जल के मर जाएं। पत्थर की लादी लेकर उसको गर्म करते थे, पेट पे रखते थे, यहां तक कि उसके पेट की चमड़ी जो थी काली हो गई, बल्कि बाज वक्त ये हुआ कि चमड़ी जलकर खत्म हो जाती, इसके पेट का दर्द कमती नहीं होता था। हज्जाज इब्न यूसुफ ने यह सवाल करवाया कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहां इनकी तलाश करो। उस जमाने में वो बुजुर्ग थे। तो कब मालूम हुआ कि मदीने मुनव्वरा में वो गए हैं तो वहीं पे जाके इनसे दुआ करवा दो। खादिम जब पहुंचा है वहां पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि हजरत हज्जाज इब्न यूसुफ के तरफ से मैं आया हूं और उससे ये कहा है कि आप दुआ फरमाइए कि मुझको अच्छा हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज़ार अक़दस के पास बैठा हुआ हूं, मैं कुछ और तो नहीं कहता, मगर ऐसे आदमी के बाद से उम्र दराजी की दुआ करना यह तकलीफ के अंदर रियाया को डालना है, यानी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाला है, इसलिए इसकी उम्र दराजी की दुआ में नहीं मांग सकता, शिफा की दुआ इसके लिए नहीं मांग सकता मैं। आखिरकार यह हुआ, फिर खादिम को भेजा गया कि मौत के लिए दुआ मांगे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह दुआ भी नहीं मांग सकता मैं, ये भी नहीं मांगूंगा। आखिर एक हकीम आए हैं वहां पर और उस हकीम ने आकर देखा इनके मर्ज को। जब मर्ज को देखा तो उससे कहा कि बाहर से पता नहीं चलता, अब मैं बता दूं कि इसके पेट के अंदर क्या चीज है। गोश्त का इतना लोथड़ा मंगाया, चमड़े का तार जो था धागा, उससे उस गोश्त के लोथड़े को बांधा और उसको कहा कि हलक खोलो, मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो उस धागे को अंदर डाला गया तो गोश्त का टुकड़ा पेट में उतरा। हज्जाज इब्न यूसुफ का यह आलम था कि कभी नाक पे मक्खी बैठ जावे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब ये बीमारी के आलम में इसकी हालत ये हो गई कि गोश्त का लोथड़ा उसके हलक से नीचे उतार रहे हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी मगर एक लफ्ज कहता नहीं, वो बर्दाश्त कर रहा है सब। गोश्त का टुकड़ा अंदर रहने के बाद थोड़ी देर के बाद में वो रस्सी थी चमड़े की, जोर से खींचा उसको, खींच के जब निकाला है तो अंदर उस कीड़े, हजारों की तादाद में बारीक बारीक कीड़े गोश्त के टुकड़े के ऊपर चिपके हुए हैं। जितने हकीम बैठे थे सबको बता के देखो इसके पेट में ये इस किस्म के कीड़े हैं। तो जितने हकीम और खादिम बैठे हुए तो उन्होंने कहा जब आप मर्ज को पहचान गए तो भी इलाज भी कीजिए इसका। तो वो हकीम जो थे वो कहने लगे अगर कोई मर्ज हो तो इसका इलाज करूं, ये तो अजाब इलाही है, इसका इलाज हो नहीं सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि कुछ जितने गुनाह हैं उसकी सजा तो आखिरत में मिलेगी, मगर कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिसकी सजा कुछ दुनिया में भी भुगतनी पड़ती है और आखिरत में भी भुगतनी पड़ती है। यह जुल्म का तरीका था जो इस हज्जाज इब्न यूसुफ ने दुनिया में चलाया और उसके बाद उसकी हालत यह हुई कि परेशान हो गया। आखिरकार यह हुआ कि उसका इंतकाल हुआ
اور جب اس کی موت ہوئی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو آدمی خبر لے کر آیا اس کو فرمانے لگے کہ آج امت محمدیہ کا فرعون کا انتقال ہوا ہے، خدا کی قسم جس سے قرآن کو زیر زبر لگائے اس کے لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسی بزرگ ہستی نے یہ فرما دیا، مطلب کہ یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے مذہب بنانا چاہیں تو وہ مذہب نہیں ہے۔ قرآن کے زیر زبر لگانا اپنی جگہ پر تھا، مگر ظلم جو اس نے اپنے طریقے سے کیا، گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اس سے اس کے جتنے عمل تھے یہ بیکار ثابت ہو گئے۔ خدا کے دربار میں ظلم نہیں سہا جاتا۔ دو چیز یاد رہے، ایک تو وہ انسان کے جس پر تم نے احسان کیا اس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اور ایک وہ شخص کے جس کو تم نے ستایا اس کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اور ہم لوگ دین اسلام کا جامع پہنے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ارے حجاج ابن یوسف جیسا احسان تم نے مسلمانوں پہ نہیں کیا، پھر کس حساب سے کہتے ہو بخشش ہو جائے گی؟ جب تک عمل زندگی کے اچھے نہیں بنتے اس وقت تک سب بیکار ہے۔ شفاعت ہو جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہ الگ چیز ہے، مگر اس کے قابل تو ہو ہم۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہے روپیہ تھا، وہ بہے روپیہ اکثر ان کے سامنے آوے، الگ الگ لباس بدل کر آوے، اور وہ لباس بدل کر جب آتے تھے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کو پہچان لے، بتا دے کہ تو بہے روپیہ تجھے جانتا ہوں میں۔ عجیب و غریب ڈھنگ سے وہ آیا مگر ہر ہمیشہ اس کو پہچان لیا۔ انعام اکرام سے مالا مال کرتے تھے، مگر جو بڑا انعام ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، کیونکہ چکما دے دے صحیح تو اس کو انعام اچھا ملے۔ حالت یہ تھی، بار بار یہ بہر روپی نے آ کر جب لباس بدل کر بھی آیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا، تو ابھی اسے سوچا کہ ان کو تو کچھ اور ہی طریقے سے ان کو چکما دیا جائے۔ اس ایک فقیری لباس پہن لیا، گاؤں کے باہر جا کر ایک جھوپڑا باندھ لیا، جھوپڑے میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پر اسے ذکر وغیرہ شروع کر دیا۔ رات کے ٹائم پر لکڑیاں جلا کر بیٹھتا تھا، جو اس کی کھاک آتی جو بھی آتا تھا اس کو کھاک اٹھا کے دے گئے، جاؤ بھائی، بچہ نہیں ہوتا یہ لے جاؤ، بیماری ہے کھاک کی شفا یہ کہ اس کو پلا دو اچھا ہو جائے گا، بس یہ کام اس کا تھا۔ دنیا میں کیا ہے، لوگ اچھا برا دیکھتے نہیں، اپنا فائدہ دیکھتے، جب ذرا فائدہ ہوگا تو بھائی بہت بڑے بزرگ ہیں بولے۔ اب وہ آدمی ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ گاؤں میں بات چلتی گئی، پورے دلی کے اندر خبر پہنچی کہ ایک بزرگ ایسے آئے کہ جو مستجاب الدعوات ہے، جب ان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو ان کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اچانک ایک جنگ کا موقع بنا، عالمگیر اپنے وزیر کو لے کر کہتے کہ چلو جائیں گے جنگ کے لیے، تیاری ہو رہی ہے، سب سے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب آگے آ گئے، پولیس افسر وغیرہ سب اور فوجی سپاہی سب تیار ہو گئے۔ عالمگیر اور وزیر اعظم دونوں آگے گھوڑے پہ بیٹھے، شروع ہوا جانے کا۔ فوج جا رہی، شہر کے باہر جب نکلے دلی سے تو وہ جھوپڑی راستے میں آ گئی، تو وزیر اعظم نے کہا کہ سپاہیوں کو آگے جانے دو، فوجی سپاہیوں کو، ہم ذرا یہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے۔ عالمگیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیونکہ بہت بڑی بزرگ ہستی ہے، کہا میں نے بھی سنا ہے، ان سے دعا کرا لے تو ہماری شکست نہ ہوگی، فتح ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے۔ اترے گھوڑے پر سے، گھوڑا باندھا، جھوپڑی میں گئے سلام کر کے۔ اب اس سے تو بالکل چہرہ وغیرہ سب بدل دیا تھا، پہچان نہیں سکا عالمگیر۔ اور آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو غور فکر زیادہ نہیں کرتا، اس کو وہی فکر رہتی دماغ پر۔ مسافہ کیا، بات چیت کی، کہ حضرت جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ دعا فرمائیے کہ آسانی ہو جائے ہمارے لیے۔ انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں شکست کی جیسی ذلت سے بچاوے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں فتح مبین دے۔ آمین کر کے دو آنکھ میں آنسو ہے، جھوپڑی کے باہر آئے۔ فقیر بھی اٹھ کے دروازے تک آیا، سنت طریقہ یہی ہے، مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو دروازے تک جاؤ۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ دروازے تک یہ فقیر آیا ہے، تو گلے میں موتیوں کا ایک قیمتی ہار تھا، وزیر کے، کہا ان کو نکال کے اس کو دے دو۔
वजीर का तो मालूम है कि बादशाह की तरफ से तो मिली हुई ये सब चीजें, बादशाह तो खुद पहनते नहीं थे कुछ। कहीं तुम्हारे गले में मोतियों का हार है, ये दे दो इनको। हार निकाल के जब दिया तो उस फकीर ने इनकार कर दिया कि नहीं बादशाह सलामत, मुझे नहीं चाहिए। हम फकीर इस हकीर चीज को लेना नहीं चाहते, हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप वापस ले जाइए। और उनसे कहते बाहर निकल के कि भाई बहुत पहुंची हुई हस्ती है, माल की तरफ निगाह तक नहीं है, इतनी बड़ी कीमती चीज दी मोतियों का, मगर ये भी नहीं लिया इसने। हकीकत में तो बहरूपिया था, कोई बुजुर्ग तो था नहीं वो। अल्लाह का करना के फतह हो गई। वापसी को आए तो फौजी सिपाही सब शहर के तरफ हुए, ये फिर उस झोपड़ी के पास उतर गए। हाथ बात मिलाया, उसके बाद में कहा कि अल्लाह का फजल हो गया कि आपने हमारे लिए दुआ कर ली, खुदा का फजल हो गया कि फतह हो गई, एक आदमी मरे बगैर हमारा सारा मामला सब अच्छा हो गया, जंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत खुश हुआ, अच्छा अल्लाह और तुम्हारी उम्र दराज करे, बादशाह सलामत कर, अल्लाह तबारक तआला दर्जे बुलंद फरमाए, ये सब दुआएं कर ली। उसके बाद बादशाह सलामत ने इजाजत मांगी, कहा बस दुआ फरमाइए, कभी हमारे महल पे भी तशरीफ लाइए। कहा इंशाअल्लाह। बाहर निकले और जैसे घोड़े पर बैठे कि पीछे से बहरूपे ने आवाज दी, बादशाह सलामत सलाम अलैकुम। पलट के देखा तो कफनी हाथ में है, कफनी हाथ में है, मोती के जो वो तस्बीह जो थी वो हाथ में है। कहा बादशाह मुझको पहचान, मैं वही बहरूपिया हूं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह घोड़े से नीचे उतर गए। कहा तू? कहा कि हां। वाकई में तूने चकमा दिया, तू बुजुर्ग नहीं? कहा कि मैं कहां से बुजुर्ग बनता, मैं तो बहरूपिया, दुनिया को चकमा देने वाला। बादशाह ने सवाल किया, एक बात पूछूं तुझे, वाकई में तो इनाम के काबिल है और इसका मुस्तहिक है, मैं तुझे दूंगा, मेरे महल में आ जा, मगर ये जवाब तो दे कि जब पहले बार इतनी मोती की कीमती दाने की तुझको जब माला दी गई, हार दिया गया, तो तूने इसको वापस कर दिया, इतनी कीमती चीज को छोड़ देता हाथ से। तो बादशाह सलामत, मेरे सीने में भी अल्लाह ने एक दिल दिया है, मैं बहरूपिया जरूर हूं मगर नमाज का पाबंद मैं भी हूं, खुदा का डर और उसका खौफ मेरे दिल में भी है। अगर उस दिन आपके मोती के दाने में ले लेता तो मैंने फकीरों का लिबास पहना था, कयामत के दिन मुझे पूछ ले कि मेरे चाहने वालों का लिबास पहनकर दुनिया को तो बनाता था, तो मेरी उस वक्त जवाब देना मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा, इसलिए वो पैसा मैंने लिया नहीं, मैंने छोड़ दिया। आलमगीर ने इसको बहुत माला माल किया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब एक बहरूपिया जो सिर्फ पेट के वास्ते काम करता था, उससे एक लिबास पहना था फकीरों का, उस फकीर के लिबास को धब्बा ना लगे इसलिए उससे पैसा नहीं लिया और अपने आप को दुनिया के इस माहौल से उससे छुड़ा लिया। हमने और आपने इस्लाम नाम का एक लिबास पहना जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको इनायत किया है। अब बताओ, इसके अंदर गुनाहों के धब्बे अगर लगा लो तो कयामत के दिन आपको और मुझको ये सवाल करे कि तुमने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ने का तुमने वादा किया था, आज बताओ कि ये धब्बे तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो नजर आते हैं गुनाहों के, आज तुम ये लेकर मेरे सामने आए हो, तो बताओ कि उस वक्त उनको जवाब क्या दोगे तुम? अरे मोमिन तो वो है कि जिसके दिल में पूरी तकवियत हो ईमान की, मोमिन वो है कि जिसके सीने के अंदर दिल है, उस दिल के अंदर ईमान के जज्बात हो। मोमिन वो है कि रास्ते में चलते हुए अगर चला जाए तो दुनिया उसको देखकर कहे कि वाकई में मुसलमान हो तो ऐसा होना चाहिए। मोमिन वो है कि जिसके दिमाग, उसके ख्याल, उसकी जबान से दुनिया को तकलीफ ना पहुंचे। मोमिन वो है कि अगर तिजारत करता तो ईमानदारी के साथ में करे। मोमिन वो है कि अगर मां बाप के साथ बैठे तो भलाई करे। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अहिया उल उलूम में एक बाब में लिखते हैं, फरमाते मोमिन के बाब में फरमाते हैं कि जब मोमिन की मिसाल कैसी हो, मोमिन ऐसा हो कि जैसे मां के पास बैठा और वहां से उठ कर जाए तो मां कहे कि बेटा हो तो ऐसा हो। जब बीवी के पास बैठा और वहां से उठकर जाए तो बीवी कहे कि शौहर हो तो ऐसा हो। दोस्तों के पास जब जाकर बैठे और वहां से उठे दोस्त कहे कि दोस्त हो तो ऐसा हो। बाप के पास बैठा और वहां से उठकर जाए तो बाप कहे कि बेटा हो तो ऐसा हो। यहां तक कि दुकान पर बैठे तिजारत करे और ताजीर उसको कहे कि ताजीर हो तो ऐसा हो। और जब अजान हो जाए मस्जिद में जाए और जब सर सजदे में रखे तो मेरा रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहे कि बंदा हो तो ऐसा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।